Good morning, class 8th, and welcome to the online classes of Vinod Swami Mandal Secondary School. This is Sanchita, and we were doing English literature. So we were on chapter number 3, the poem, which is the McCavity, the Mystery Cat, and the author or the poet, this poetry or the poet of this particular poem is Mr. Thomas Stearns Eliot, or we can call him T.S. Eliot. So we know that Mr. Eliot was a publisher, he was an essayist, he was an editor, he was a literary critic, and he also won Nobel Prize in the year 1948 for his works on literature. So he is said to be one of the central figures in the English language modernized poetry. So far we have seen about a mystery cat whose name is McCavity, who is a villainous and a wicked cat. बहुत ही चतुर और चालाक कैट है जो कि आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आता, अपना कोई सुराग नहीं छोड़ता है ये कैट, और इसने लंदन पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड को भी परेशान कर रखा है, उनको कंफ्यूजन में कर रखा है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू होल्ड दिस कैट बिकॉज ही इज सेड टू बी अ मास्टर criminal. Okay, so let's begin from the place where we left last time, and it was McCavity, McCavity, there is no one like McCavity. So McCavity, there is no one like McCavity. कोई भी McCavity की तरह नहीं है. He is broken. Every human law. He breaks the law of gravity. He has broken every human law because we know that McCavity does not obey any rules. He defies the rules. Okay, he defies the rules. He resists it openly. He openly breaks the law. So he breaks every human law. He breaks the law of gravity. Now what is meant by law of gravity here? Here law of gravity means no one can vanish but McCavity does. Means law of gravity क्या कहता है, जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब है हर कोई चोर अपने पीछे एक सुराग छोड़ता है, एक सबूत छोड़ता है, बट मैककेविटी इज रियली डिफरेंट. ही इज अलोफ एंड दैट्स व्हाई ही डज नॉट कम अंडर द लॉ ऑफ ग्रेविटी बिकॉज ही वैनिशेस एंड नो वन कैन वैनिश. कोई भी गायब नहीं हो सकता, बट मैककेविटी तो गायब हो जाता है. His powers of levitation would make a fakir stare. Levitation means floating in the air without support. So यहाँ पे इसका मतलब है vanishing away. तो जो power है मैककेविटी की वैनिश होने की और फ्लोट करने की एयर में विदाउट सपोर्ट, वो एक फकीर जो है, जो एक रिलीजियस मैन है, वो भी अचंभित है, वो भी सकते में है कि ये कैसा पर्सन है, बिकॉज फकीर और रिलीजियस मैन सेड टू बी दोज पीपल हु कैन एक्चुअली फ्लाई इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिकॉज व्हेन दे रीच द meditation level or the yoga levels wherein the union happened between the Atma and Paramatma, and so many things are there. So in that case they can actually do that one. They can actually levitate कर सकते हैं और float कर सकते हैं एयर में. सो लॉ ऑफ ग्रेविटी को वो तोड़ते हैं. लेकिन जिस तरह से मैककेविटी है, द पावर ऑफ वेनिशिंग, द पावर दैट वी कैन नॉट फाइंड हिम, इट मेक्स अ फकीर और अ रिलीजियस मैन स्टेयर लाइक एनीथिंग. And when you reach the scene of crime, McCavity is not there. So whenever our Scotland Yard police and the flying squad of London police, they reach to the crime scene, they do not find McCavity because he vanishes. वो कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता, ना कोई सुराग छोड़ता है कि आप उस तक पहुँच सको. You may seek him in the basement. You may look up in the air. मे बी आप उसको बेसमेंट में यानी ग्राउंड लेवल पे अंडरग्राउंड में सर्च करने की कोशिश कर सकते हैं, आप हवा में देख सकते हैं, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैककेविटी इज नॉट देयर. लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मैककेविटी आपको कहीं नहीं मिलेगा. वेदर यू सर्च हिम इन अंडरग्राउंड, वेदर यू सर्च हिम इन ग्राउंड, वेदर यू सर्च हिम इन एयर, बट मैककेविटी इज नॉट बी फाउंड एनीवेयर. इट इज यूजलेस टू सर्च फॉर हिम. कोई मतलब नहीं है उसको सर्च करके, क्योंकि वो नहीं मिलता. McCavity is a ginger cat. Now what is a ginger cat? Here ginger cat means color of ginger, that is reddish brown. So McCavity का जो कलर है, McCavity यानी जो ये बिल्ली है जिसका कलर है ये भूरी कलर की बिल्ली है,
ये रेडिश ब्राउन कलर की बिल्ली है, जिंजर कलर की है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, बहुत ही लंबा है और बहुत ही पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आइज आर संकन इन। सो आप उसको तभी जान सकते हैं अगर आपने उसको पहले देखा है, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो संकन है, उसकी जो आंखें हैं वो अंदर घसी हुई है, थोड़ी डीप हैं। सो मैककैविटी इज समवन हु इज अ जिंजरली टाइप ऑफ कैट, जिंजर कलर कैट, वेरी टॉल, वेरी थिन। You can only recognize him if you have seen him before, because his eyes are sunken in, उसकी जो आंखें हैं वो अंदर घसी हुई हैं। His brows is deeply lined with thought, his head is highly domed, उसकी जो brows हैं, उसकी जो eyebrows हैं वो बहुत ही deeply lined है with thought, वो उसके दिमाग में हमेशा कुछ चलता रहता है। ये देखो उसकी जो आंखें ना वो यूँ इस टाइप की है, जो brows है हमेशा ऐसी रहती है। क्यों? बिकॉज ही इज ऑलवेज थिंकिंग, ही इज ऑलवेज थिंकिंग, ही इज इन सम थॉट प्रोसेस। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, उसका जो दिमाग, जो उसका हेड है, जो उसका सिर है वो हमेशा डोम्ड रहता है, वो हमेशा ऊंचा उठा हुआ रहता है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसका जो कोट है, जो उसने कोट पहन रखा है, जो आप ये कोट यहाँ पे देख रहे हैं वो डस्टी है, वो डस्ट से भरा हुआ है, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, बिकॉज ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ही डज नॉट सी वेदर द कोट इज वॉश्ड, इट इज प्रॉपरली ब्रश्ड, नथिंग इज ही नेग्लेक्ट हिमसेल्फ। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, उसके जो बाल हैं वो भी अनकॉम्ड है, वो ठीक से अपने बाल भी नहीं बनाता। ही स्वेयर्स हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ snake. So Macavity is compared as with a snake here, because वो अपने जो sway का मतलब होता है to and fro motion पे, तो snake जैसे अपने आप को इस तरह से हिलाता है, वैसे ही हमारा जो Macavity है, जो cat है, उसका मूवमेंट भी snake की तरह है। He always sways his head like this, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. सो आप उसको जब भी देखेंगे और आपको लगेगा कि वो सो रहा है या आधी नींद में है, एक्चुअली में तब वो सो नहीं रहा है, तब वो जगा हुआ है। ही इज़ नॉट एस्लीप, ही इज़ वाइड अवेक, ही इज़ वाइड अवेक, वो पूरी तरह से जगा हुआ है। दैट मीन्स ही क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन वेयर अ पर्सन विल थिंक दैट ही इज हाफ स्लीपिंग वेयर एज ही इज फुली अवेक। Macavity, there is no one like Macavity. Macavity की तरह इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो एक तरह से वो प्रेस कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिकली वो बता रहे हैं क्रिमिनल्स के बारे में कि ये ऐसा क्रिमिनल है जिसको पकड़ना सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। For he is a fiend in feline shape. Okay, so what is a fiend? Fiend means devil or evil spirit in a feline. Feline means something related to cat. So वो कैट के शेप में, वो बिल्ली की शेप में एक शैतान है, एक evil है, एक डेमन है। ओके, अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, एक मॉन्स्टर है जो मॉरली करप्ट है। डेप्रेविटी का मतलब मॉरली करप्ट है। सो बिल्ली की शक्ल में वो एक शैतान है, एक evil है जो टोटली मॉरली करप्टेड है। You may meet him in a by street. You may see him in the square. आप इस टाइप के पर्सन से कहीं भी मिल सकते हैं। आप उसको, आप बाय स्ट्रीट मीन्स अ प्राइवेट स्ट्रीट। यू कैन मीट सच टाइप ऑफ कैट और सच टाइप ऑफ पर्सन anywhere, any time at private street, or maybe you can find him in a square, on a mall. Square means a mall here. यानी यहाँ पे पोइट बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने क्रिमिनल्स के बारे में बताया है कि मैककैविटी तो उन्होंने एक नाम दिया है कैट का, ठीक है, लेकिन वो बात यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की कर रहे हैं। सावधान कर रहे हैं अपने रीडर्स को, हमारे टी.एस. एलियट, बाय सेइंग दैट कि आप ऐसे लोगों से कभी भी टकरा सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज दिस क्रिमिनल्स आर रियली very much wicked. It is not at all easy to find them because they do not leave any mark. So, and you can find this type of people anywhere. You can find them in a private street, on a road, you can find them in a square or a mall. So please be very aware of them. But when a crime is discovered, then Macavity is not there. Because whenever any crime is discovered, you will never ever find Macavity type of cat or Macavity type of person. So that ends our chapter, that ends our poem. It is by Mr. T.S. Eliot.
and I hope that you have enjoyed this particular poem, because this is something, as I said, that our poet wants to actually tell readers that please be aware of such kind of people in your life. We may accidentally meet them anywhere, anytime, so please be careful. Okay, so today's thought is, we don't own the planet Earth, we belong to it, and we must share it with our wildlife. It is said by Steve Irwin, who was one of the environmentalists, and we have seen him in various projects of Discovery Channel. So he said that we do not own this earth. हम अर्थ को अपना घर समझते हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम यहाँ पे सिर्फ रहते हैं, हम इसको बिलोंग करते हैं, and we need to share it with our wildlife, not only with the human beings. Thank you, and we will meet again, and we will read the other chapters and everything. So till then, please take care of yourself.